روایت کو زندہ و ساری باقی رکھیں. یہ ہماری آئندہ نسلوں تک ایک ثواب جاریہ کا کام ہے. تو میں جناب فقیر سید آصف حسین صاحب سے گزارش کروں گا جو چیف گیسٹ ہیں اس کے کہ وہ اپنے آخر میں اپنے خیالات کا اظہار کریں. جناب فقیر سید آصف حسین صاحب. شکریہ. کھلونا نہ ملنے پہ روتا ہے بالغ، ابھی زندگی سے شناسا نہیں ہے، اور ہزار سر نہاں دل کے کھولتی آنکھیں، پھر اس کے ذکر پہ جھک جھک کے بولتی آنکھیں. یہ ایک بہت خوش آئند بات ہے کہ آج یہ خوبصورت تقریب ایک پختہ گو شاعرہ کے بارے میں ہے جن کا نام ہے طلعت اشارت. ان کی یاد میں یہ منعقد کی جا رہی ہے. اس یاد کے پس منظر میں ایک مقصد یہ بھی ہے کہ ان کے نام اور کام کو محفوظ کیا جا سکے، جس کی طرف مقبول صاحب نے بھی اور ایمن صاحب نے بھی مجھ سے پہلے اشارہ کیا. اور یقیناً کونسلیٹ جنرل آف پاکستان آپ کی کوششوں کو سراہتا بھی ہے اور آپ کے ساتھ بھی ہے. جہاں تک میری اطلاع کا تعلق ہے اس کے مطابق چند ماہ قبل مرحومہ طلعت اشارت خان کے شوہر محترمی معین الوحید خان صاحب نے جناب تقی کمال کے تعاون سے ایک شعری نشست کا اہتمام کیا. اس تقریب میں قلمکار اور مرحومہ کے دوست اور احباب شامل تھے، اور اس تقریب کی صدارت جناب ایمن مامون صاحب نے کی تھی. اور اس میں انہوں نے کچھ 3 تجاویز پیش کی تھی جس کا انہوں نے آج اپنی ابتدائی تقریر میں ذکر بھی کیا. اور وہ 3 جو ان کی تجاویز تھیں وہ یہ ہیں کہ نمبر 1 طلعت اشارت فن اور شخصیت کے نام سے ایک کتاب چھاپی جائے جو آج ہمارے سامنے موجود ہے. نمبر 2 ہر سال ان کی یاد میں ایک مشاعرہ نومبر کے مہینہ میں کیا جائے جس کا ابھی یہاں پہ اعادہ بھی کیا گیا. اور تیسرا یہ کہ کسی نئے شاعر یا شاعرہ کو طلعت اشارت ایوارڈ دیا جائے. مجھے اس بات کی خوشی ہے کہ آج یہ تینوں تجاویز جو ہیں وہ حقیقت کا درجہ پا رہی ہیں، اور اس کے لیے آپ سب حضرات مبارک کے مستحق ہیں. میں نے طلعت اشارت صاحبہ کا کلام جستہ جستہ نہیں بغور پڑھا ہے اور اس سے متاثر بھی ہوا. بلا شبہ انہیں زبان پر قدرت حاصل تھی اور بیان پر دسترس ہوئی تھی. ان کے ان اشعار میں شامل یہ اضافتی تراکیب ان کی ہنرمندی کی نشاندہی کرتی ہیں، جیسے طاؤس سے تمنا اور طور ہستی. ان کے میں 2 شعر عرض کرتا ہوں جس میں انہوں نے یہ تراکیب استعمال کی ہیں. بن میں لہرائے ہے طاؤس سے تمنا کی طرح، بن میں لہرائے ہے طاؤس سے تمنا کی طرح، اور ہاتھوں سے نکل جائے ہے دنیا کی طرح. کیا خوبصورت شعر. بن میں لہرائے ہے طاؤس سے تمنا کی طرح، اور ہاتھوں سے نکل جائے ہے دنیا کی طرح. اور دوسرا ہے تو کبھی میری تمنائی کی پذیر آئی کر، تو کبھی میری تمنا کی پذیر آئی کر، طور ہستی پہ جگہ پائے گا موسیٰ کی طرح. آپ ان دونوں اشعار میں اگر لفظ تمنا کو ایک علامت کے طور پہ لیں تو یوں یہ دونوں اشعار تہداری کی صفت میں صرف معمول ہو جائیں گے، اور اس میں وہ جو استادوں کی جو ہے جو چمک ہے، جو مزاج ہے، وہ آپ کو ان دونوں اشعار میں نظر آئے گا.
یہ جو کتاب ہے طلب اشارت ان کا فن اور شخصیت اور فن، اس میں مامون صاحب کے بھی 2 خالص فنی مضامین ہیں جس میں انہوں نے طلب اشارت کے اسلوب کا جائزہ لیا ہے۔ اردو ادب کے ایک شائق اور ادنا قلمکار کی حیثیت سے میں اس تقریب کی جملہ منتظمین اور خاص طور پر تقی کمال صاحب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور ان کے ساتھیوں کو بھی جنہوں نے اس کتاب کی تکمیل میں بہت اہم کردار ادا کیا ہے، اور انہی کی کاوشوں اور کوششوں کا نتیجہ ہے اور محنت کا نتیجہ ہے کہ آج یہ پایۂ تکمیل کو پہنچی ہے، اور یہ ان کی جو کوشش ہے یہ قابل ستائش ہے۔ میں یہاں یہ بھی اعتماد کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ مامون صاحب کی رہنمائی اور کاوشات کے بغیر یہ تقریب اور یہ کتاب شاید ممکن نہ ہوتی، اور اس بات کا پہلے بھی یہاں پہ اعتراف کیا جا چکا ہے۔ وہ بے شک ایک بہت اچھے نقاد ہیں، اور اردو ادب میں کے لیے ان کی بہت خدمات ہیں، اور میرے نزدیک ان کا مقام جو ہے وہ اساتذہ کے لیول پہ آتا ہے۔ وہ یقیناً ایک نمائندہ شاعر ہے، اور شمالی امریکہ کے جو رہنے والے ہیں ان کی یہ خوش قسمتی ہے کہ وہ ہمارے درمیان میں موجود ہیں۔ آؤ پھر بزم سجانے کی بنا ڈالی جائے، یہ طلب اشارت کا شعر ہے۔ آؤ پھر بزم سجانے کی بنا ڈالی جائے، تربیت دل کی نہ ہوگی تو خطا ٹھہرے گی۔ طلب نے دل کی تربیت سے ہمیں بزم سجانے کی دعوت دی تھی۔ آج کی یہ محفل جو آپ سب نے یہاں سجائی ہے اسی تربیت کا ایک جیتا جاگتا منظر ہے۔ آئیے ان محافل کو اور ان مناظر کو سدا آباد رکھیں۔ میں احباب ادب سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ دیگر قلمکاروں کی زندگیوں اور ان کی خدمات کا احاطہ بھی کتابوں کی صورت میں ان کی زندگی ہی میں کر لیا کریں۔ زندگی ایک بے اعتبار حقیقت ہے، یہ بے اعتبار حقیقت نہ جانے کب کس زندگی کو افسانہ کے سانچہ میں ڈھال دے۔ مجھے یہاں پہ غلام فرید کا ایک بند یاد آ رہا ہے جو میں نے یہاں پہ خاص اس تقریب کے لیے لکھ کے لایا تھا۔ پنجابی میں ہے، کوئی پلیا ناز تے نخریاں وچ، کوئی ریت تتی تے تھل چڑھیا، کوئی پلیا ناز تے نخریاں وچ، کوئی ریت تتی تے تھل چلیا، کوئی بھل گیا مقصد آوندا، کوئی کر کے مقصد حل چلیا۔ اتھے ہر کوئی فرید مسافر ہے، اتھے ہر کوئی فرید مسافر ہے، کوئی اج چلیا۔ آپ کی سماعت کا بہت بہت شکریہ۔ میں نے طلب اشارت کے لیے ایک غزل بھی لکھی ہے، اور وہ میں میرا خیال ہے جب شعری نشست ہوگی اس میں پڑھوں گا۔ جناب مامون احمد آپ کے جناب فقیر سید آصف حسین کہہ رہے تھے کہ کوئی آج چلے آ کوئی کل چلے آ، لوگ چلے تو جاتے ہیں لیکن دلوں میں ضرور یاد رہتے ہیں، ان کی یادیں ضرور دلوں میں رہتی ہیں، اور طلب بازی آج ہمارے اندر نہیں ہے لیکن ان کی یادوں سے ہم یہی کہیں گے کہ یادوں کی گھنی چھاؤں بھی رخصت ہوئی گھر سے، ایک اور سفر کے لیے لوٹاؤ سفر سے۔ میرا خیال ہے دوسرا مرحلہ، پہلا مرحلہ ختم ہوا، دوسرا مرحلہ یادگاری ایوارڈ کی تقریب کا ہے، اور اس سلسلے میں 3 ایوارڈ ہیں جو مختلف ان کی خدمات پر دیے جائیں گے۔ آپ تیار ہیں؟ ریڈی ہیں؟ اچھا، پہلا ایوارڈ یہاں پر میرے سامنے ایک بڑا معتبر نام ہے، اور بڑا وہ کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے، نیو یارک سے تعلق ہے ان کا۔ خالد عرفان ایک شاعر، بڑے شاعر، امریکہ
उनकी शख्सियत से वाकिफ ना हो, मेरी उनसे गुजारिश है कि वो तशरीफ लाएँ। उन्हें गेवारा अदब और लिटरेरी सोसाइटी ऑफ फिलाडेल्फिया की जानिब से परवेज़ फारूकी और तकी कमाल भाई अवार्ड पेश करेंगे। मैं परवेज़ फारूकी और तकी कमाल भाई से दरख्वास्त करूँगा कि वो आएँ और अपने उनके अदब के जो उनकी खिदमात हैं उस सिलसिले में कहाँ पेश करेंगे अवार्ड? अवार्ड तो निकाल लो पहले भाई। तकी भाई ने ये बात को निकाला नहीं जब वैसे, क्योंकि नज़र लग जाती है लोग, अगर लोग देख लेते हैं। ये बात बहुत खूबसूरत है, मैं दिखा दूँगा आपको। इस अवार्ड को मामून अहमद साहब में आए और इसको ज़रा पढ़ें प्लीज़। मामून अहमद साहब। इंग्लिश में लिखा है, मैं चाहता हूँ मामून भाई पढ़े ज़रा। Ladies and gentlemen, the award reads like this: Talat Isharat Award, December 1st, 2012. And the caption says like this: presented to Mr. Khalid Irfan, poet and writer, for serving Urdu language and literature. And ladies and gentlemen, he deserves it. Yes. मुबारकबाद। कादिर भाई कुछ कहेंगे आप? कुछ कहना चाहते हैं? मैं सिर्फ यही कहूँगा कि ये अवार्ड अचानक मिला है मुझे, और मुझे खुद भी नहीं मालूम कि ये क्यों मिला है, लेकिन इसके सही मुस्तहिक तकी कमाल थे जो सही मानों में उर्दू की खिदमत कर रहे हैं। तकी भाई तशरीफ रखें। तशरीफ खालिद इरफान भाई, आपको नहीं पता कि आपको क्यों मिला है। जब आप घर चले जाए तो फिर जो है वो फ़ोन करके पूछेगा, हम आपको ज़रूर बताएंगे। मेरे पास दूसरा अवार्ड यहाँ पर मौजूद है। मुझे इकबाल अजीम का एक शेर याद आ रहा है कि हम माथे पे बल डालकर बाजार से गुजरे, हम जैसे फ़कीरों को कोई दे भी तो क्या दे। लेकिन मैं आज वादा करता हूँ कि फ़कीर आसिफ हुसैन साहब आपको ज़रूर जो है वो फिलाडेल्फिया गेवारा अदब आपको ज़रूर कुछ ना कुछ देगी। तो दूसरा अवार्ड आपके लिए है, जो खालिद मकबूल सिद्दीकी भाई से मैं गुजारिश करूँगा कि वो आपको अवार्ड पेश करें। मैं आपसे गुजारिश करूँगा कि यहाँ तशरीफ़ लाएँ। फ़कीर सैयद आसिफ हुसैन साहब। मैं अपनी उर्दू सही करने के लिए 2-4 अल्फाज अर्ज करूँगा। अक्टूबर 1963 का वो वक्त मैं अब याद करता हूँ और ये शेर अपना याद करता हूँ। किससे कहें जो दिल पे गुजरती है रोज़ शब, किससे कहें जो दिल पे गुजरती है रोज़ शब, है अजनबी ये देश नहीं कोई हमज़द। ये 49 बरस पहले का शेर है, जो लाहौर पाकिस्तान से आने वाले एक 22 साला नौजवान ने कोलंबिया यूनिवर्सिटी में तालीम हासिल करते वक्त कहा था। और अब मुझे ये खुशी है कि हम अपने दिल की बात एक तरफ, हम अपनी सरगोशियाँ तक, अपने अहबाब तक पहुँचा सकें।
اور یہاں پر میرا قیام اب آپ دیکھ لیجیے 49 برس سے زیادہ کا ہے. میں نے کئی چاند دیکھے ہیں, کئی سورج دیکھے ہیں, کئی خزائیں دیکھی ہیں اور کئی بہاریں دیکھی ہیں, لیکن یہ پہلا موقع ہے کہ جب ایک ادب کا رسیا, فن کا شیدائی, شعر کا عاشق, فقیر بن کر یہاں امارت کے درجے پر فائز ہے. یہ پہلا موقع ہے خواتین و حضرات کہ فقیر سید, یہ آصف کہتے ہیں, میں آصف کہتا ہوں, فقیر سید آصف حسین یہاں پر کونسل جنرل ہیں, اور وہ واقعی پاکستانیوں کو ایک ساتھ جمع کرنے کی صحیح میں پوری طرح مصروف ہیں, اور انہوں نے اس کے لیے جو راستہ چنا ہے وہ شعر کا راستہ ہے, اور وہ تقاریب میں شریک ہوتے ہیں اور احباب کو اپنے ہونے کا احساس بھی دلاتے ہیں اور اپنے وجود کا جواز بھی پیش کرتے ہیں. خواتین و حضرات, یہ آپ نے پہلے اس سے قبل اس طرح کے ایوارڈز نہیں دیکھے. یہ تقی کمال صاحب کو مبارکباد پیش کیجیے کہ انہوں نے وہ جگہ ایجاد کی ہے, یہ دریافت کہ یہ ایوارڈ وہاں سے انہوں نے بنوایا. میں اس کا کیپشن آپ سے عرض کرتا ہوں. Caption, ladies and gentlemen, reads like this: Talat Isharat Award, December 1st, 2012. And the caption reads, presented to His Excellency Faqir Sayyid Asif Hussain, Consul General of Pakistan, New York, for promoting Urdu language and literature. And Mr. Consul General, you deserve it and you have earned this honor, and congratulations. تھینک یو ویری مچ. میرے پاس الفاظ نہیں ہیں کہ جتنے اچھے الفاظ ایمن صاحب نے میرے لیے استعمال کیے ہیں شاید میں ان کا مستحق نہیں ہوں. متین صاحب نے ایک بات کی یہاں پہ کہ ہم آپ کو کچھ نہ کچھ دے کے جائیں گے. میں متین صاحب سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ مجھے صرف یہ ایوارڈ نہیں دے رہے, میں یہاں سے بہت سا پیار محبت دے گا. یہ ایوارڈ نہیں رہنے والے ہیں, اسی دنیا میں رہنے والے ہیں, لیکن آپ کی محبت, آپ کا پیار, آپ کا خلوص وہ جو ہے وہ ہمیشہ ہمیشہ رہنے والا ہے, اور وہ میں یہاں سے سمیٹ کے لے جا رہا ہوں. مامون ایمن صاحب نے ہمارے کونسل جنرل صاحب کے بارے میں ایک آدھ بات کہی. مجھے نہیں معلوم کہ ان کا نام فقیر کیسے پڑا ہے, لیکن فقیر فقر سے نکلا ہے. فقر میں 3 لفظ آتے ہیں, فے, قاف اور رے. فے سے فاقہ ہوتا ہے, قاف سے قناعت ہوتا ہے, اور رے سے ریاضت ہوتا ہے. میری جو ہے وہ مجھے امید ہے کہ یہ ان تینوں الفاظ پر جو ہے یہ اس پہ کبھی ڈیبیٹ کریں گے. ان تینوں الفاظ پہ ہمارے کونسل جنرل پورے اترتے ہیں. اس کے بعد کا مرحلہ جو ہے وہ شعر و شاعری کا مرحلہ ہے. میرا خیال ہے تیسرا مرحلہ شعر و شاعری کا مرحلہ. لیکن اس مرحلے سے پہلے میرے پاس ایک اور نام ہے, اور ایک رئیس وارسی بھائی یہاں پر موجود ہیں, اور مجھ سے کہا گیا ہے کہ وہ ایوارڈ لے کے آئے ہیں. تو مجھے ایسا لگا, پہلے مجھے تقی بھائی نے کہا وہ ایوارڈ لے کے آئے ہیں, تو مجھے ایسا لگا وہ اپنا ایوارڈ خود لے کے آئے ہیں. لیکن رئیس بھائی کی یہ جو ہے کثر نفسی ہے کہ وہ یہ ایوارڈ طلعت باجی کے جو شوہر ہیں معین بھائی ان کے لیے لے کے آئے ہیں, یہ ان کو یہ ایوارڈ دیں گے. تو میں تقی اپنے رئیس وارسی بھائی سے گزارش کروں گا کہ وہ آئیں, لیکن معین بھائی چلے گئے میرا خیال, ان کو معلوم ہے کہ آپ کیا لے کے آئے ہیں.
تو میرا خیال یہ ہے کہ تھوڑا انتظار کر لیتے ہیں جو ہے وہ ان کے آنے تک. یہاں پر میرے پاس جو لسٹ موجود ہے شعراء حضرات کی, مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ محترم کونسل جنرل کے خالد بھائی کے اور میرے علاوہ ہر آدمی کو یہاں شعر کہنا ہے. آپ سے اپنا اور خالد بھائی کا نام نکالیں تو مشاعرے کے بارے میں خصوصی نہیں وہ کتاب تو کریں گے لیکن اشعار شاعر بھی. اچھا تو مجھے لگ رہا ہے کہ میں اور خالد بھائی واحد ہیں جو یہاں پہ شعر نہیں پڑھیں گے. باقی پوری لسٹ جو ہے وہ موجود ہے. میرا خیال ہے کچھ محلے والوں کے بھی نام ہیں جو باہر لائن میں لگے ہوئے ہیں. تو میری گزارش یہ ہوگی کہ جو ہے وہ مختصر وقت میں ایک اچھا کلام اگر اچھا ہو اور دل کو بھلا لگتا ہو, آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچاتا ہو اور دل میں اتر جاتا ہو تو ایک شعر اور ایک غزل بھی کافی ہوتی ہے. آج کل کے زمانے میں تو جو ہے وہ جو کلیم عاجز نے کہا ہے کہ ہمیں یہ دیکھ کے کہتے ہیں آج کل والے, نوا گئے روش میر کی غزل والے, جگر کا خون نہ دیتے اگر غزل والے تو آج تم بھی نہ کہلاتے پھول پھل والے. اور ہمارے حال پہ او اب روحوں پہ بل والے, تو اپنی زلفوں کے تو بے چخم نکل والے. اور یہ بات ہم سے جو چاہے جہاں کہل والے, ڈبونے والے یہی ہیں اگل بغل والے. بھائی آگے ہیں تو آپ کا جو ہے وہ ایوارڈ ان کو دینے کا سلسلہ کیا جائے. اس کے بعد میرا خیال مشاعرے کی کارروائی آگے بڑھائی جائے. مجھے معلوم نہیں کہ پہلا نام کس کا ہے اور آخری کس کا ہے, اس پرچے میں دیکھ کے پتہ چلے گا. لیکن جتنے بھی لوگ شاعر کی حیثیت سے یہاں پر آئے ہیں وہ اپنی اپنی کتابیں اور اپنے اپنے جو ہے وہ پرچے نکال لیں. اشرف بھائی آپ نے جو مجھے لسٹ دی ہے میرا نام نہیں ہے, یہی لسٹ ہے. میرا خیال یہ ہے کہ جو ہے وہ جب معین بھائی آئیں گے تو رئیس بھائی اپنا انہیں ایوارڈ پیش کریں گے. تو ہم تیسرے مرحلے کی جانب چلتے ہیں. تو میں اپنے پہلے جو شاعر ہیں وہ یہاں پہ دعوت خطاب دوں گا کہ وہ آئیں اور خالد بھائی آپ معین بھائی کو لے کے آئیں. ڈھونڈ رہے ہیں جن لوگوں نے کتابیں نہ لی ہیں وہ $10 کی کتاب اس کا جو ہے وہ کتاب کا تو کوئی جو ہے وہ مول نہیں ہوتا ہے, کوئی اس کا عطیہ نہیں ہوتا ہے. دل سا انمول رتن کون خریدے گا شکیب, جب بکے گا تو یہ بے دام ہی بک جائے گا. لیکن جو ہے وہ اس ادارے کے لیے اور جو ہے وہ طلعت بازی کے لیے جو ہے وہ یہاں پر $10 کی کتاب ہے. تو جن حضرات کی کتابیں نہ لی ہیں تو میں ان سے گزارش کروں گا کہ وہ کتابیں یہاں سے لے لیں. معین بھائی جب تک آتے ہیں, جب تک ہم شعری سلسلہ شروع کرتے ہیں, درمیان میں معین بھائی کو پھر رئیس بھائی ایوارڈ پیش کریں گے. تو سب سے پہلے میرے پاس نام ہے شاہ سماق فاطمہ کا. تو میں ان سے گزارش کروں گا کہ جو ہے وہ
अरशद भाई ने वहाँ से कहा कि पहले मुझे बुला लें, पहले जो है वो उनको कहीं जाना है शायद। एक तजवीज़ में रखूँ, मोइन भाई के बजाय मुझे आपको दे दिए ऑन बिहाफ ऑफ हिम, और मैं घर पे उन्हें दे दूँगा। मोइन भाई बहुत तशरीफ ले आए हैं, देर हुई आने में, तुमको शुक्र है फिर भी आए। तो आज के दिल का साथ न छोड़ा, वैसे हम घबराए थे। मोइन भाई आ गए हैं, तो मैं रईस भाई उन्हें ये अवार्ड देंगे। उर्दू मरकज़ न्यूयॉर्क की जानिब से ये अवार्ड है, लाइफ अचीवमेंट अवार्ड उन्होंने किया है। उर्दू मरकज़ न्यूयॉर्क की जानिब से लाइफ अचीवमेंट अवार्ड है, जो रईस भाई पेश करेंगे मोइन भाई। मोइन भाई आपसे गुजारिश है कि वो आप यहाँ पे मैं दे चले रईस भाई जो है तलतबाजी की अदबी और सकाफती खिदमात के इतराफ़ में उर्दू मरकज़ न्यूयॉर्क की जानिब से जो लाइफ अचीवमेंट अवार्ड पेश किया गया है, उसकी इबारत इन अल्फाज में मबनी है। उर्दू मरकज़ न्यूयॉर्क उर्दू की मायनाज शायरा और अदबी और सकाफती शख्सियत मोहतरमा तलत इशारत मरहुमा की शुमाली अमेरिका में तवील अरसे पे मुहित उर्दू ज़बान व अदब की तरक्की के लिए गिरा कदर खिदमात और समाजी और सकाफती सरगर्मियों के फ़रोग़ में बेमिसाल कारकर्दगी के इतराफ़ में उर्दू मरकज़ न्यूयॉर्क की जानिब से लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड पेश किया जा रहा है। इस इदारा उनकी शेरी तख्लीक़ात और काबिश फहम को भी खराज तहसीन पेश करता है। दस्तखत रईस वारसी सदर नईम हाशमी सेक्रेटरी 1 अप्रैल 2012 न्यूयॉर्क। यकम दिसंबर आपकी इस्लाह का शुक्रिया। मैं चश्मे के बावजूद सही नहीं पढ़ पाया, मुझे यकीन है जो कुछ मैंने कहा होगा उसका आपने यकीन भी किया होगा, तो ये तकरीबन मैंने सही पढ़ा है। ऐसे ही है बहुत कोई लम्हा ज़ाहिर के बगैर मैं अरशद से मैं गुजारिश करूँगा कि वो आएँ और अपने ख्यालात का इज़हार करें। आप शेर पढ़ेंगे, मेरा ख्याल है शायरी जो है वो सिलसिला शुरू हो गया है। थैंक यू मतीन भाई। वक्त बहुत ज़्यादा हो चुका है, मगर चूँकि ये बाजी की फरमाइश, हमेशा बाजी जब हमारे यहाँ मुशायरा हुआ करता था फिलाडेल्फिया में, तो बाजी की ये फरमाइश होती थी कि अरशद ने बेटा वो बस सुना, वो वाली नज़म सुना दो, खाट वाली। तो मैं डरा नहीं रहा हूँ यहाँ पे किसी को, ये हकीकत है जो मैं सुनाने जा रहा हूँ, ये एक नज़म है। इसमें अगर कोई गलती या कोई ऊँच नीच हो जाए तो उसके लिए मैं मानना चाहता हूँ आपसे इजाज़त। नज़म का उन्वान है खाट के अंदर। कभी इतरा के चलता था, कभी इतरा के चलता था, पड़ा है खाट के अंदर। अकड़ता था जमीन पे बेसदा है खाट के अंदर। कभी सोचा भी था तूने, कभी सोचा भी था तूने कि मरना भी है तुझे एक दिन। कभी सोचा भी था तूने कि मरना है तुझे एक दिन। गई सब शान और शौकत अब पड़ा है खाट के अंदर। रहा कोशिश में तू छूले बुलंदी आसमानों की, रहा कोशिश में तू छूले बुलंदी आसमानों की। लहक का मुंतज़िर बे आसरा है खाट के अंदर। जो हकदारों के हक देता तो दुनिया तुझसे खुश रहती। जो हकदारों के हक देता तो दुनिया तुझसे खुश होती। हिसाब आखिर तेरा होने लगा है, हिसाब आखिर तेरा होने लगा है खाट के अंदर। कभी सोचा भी था तूने कि ऐसा दिन भी आएगा, कभी सोचा था तूने कि ऐसा दिन भी आएगा। बस
एक चादर पे तू दस्त तो पा है खाट के अंदर। जो तुझसे प्यार करते थे, जो तुझसे प्यार करते थे, जो तुझ पर जान देते थे, जो तुझसे प्यार करते थे, जो तुझ पर जान देते थे, हर एक आंसू लिए अब तक रहा है खाट के अंदर। कोई फंक्शन हो, जो आजकल का माहौल है, कोई फंक्शन हो, शादी हो, अटेंड करना जरूरी था। कोई फंक्शन हो, शादी हो, अटेंड करना जरूरी था। खुदा को भूल कर पछता रहा है खाट के अंदर। खुदा को भूल कर पछता रहा है खाट के अंदर। और खुला था जो तौबा का दरवाजा, वो एक दिन बंद होना था। खुला था जो तौबा का दरवाजा, वो एक दिन बंद होना था। तमाशा खत्म आखिर हो चुका है खाट के अंदर। आखिरी मिसरा है जो सबके लिए है। दुआए मग़फ़िरत कीजिए, कल हम भी यही होंगे। दुआए मग़फ़िरत कीजिए, कल हम भी यही होंगे। कहेंगे लोग ये अरशद पड़ा है खाट के अंदर। कहेंगे लोग ये अरशद पड़ा है खाट के अंदर। अस्सलाम वालेकुम। शायद मुझे निकाल के पछता रहे हैं आप। दोबारा से मैं आ गया हूँ फिर खाट के अंदर। दूसरा नाम है मेरे पास शाह सिमा फातिमा का। मेरा ख्याल है मैंने नाम जो है सही पढ़ा है। अगर तलफ़्फ़ुज़ की जो है वो गलती हो तो जो है माफ़ कीजिएगा। अल्फाज लुग़त ही के पाबंद नहीं होते, लहजे से भी लफ्ज़ों का मफ़हूम बदलता है। शाह सिमा फातिमा। गलतबाजी के लिए क्लियर है। वक्त का एक बाग सिमट गया है, वक्त का एक बाग सिमट गया है, साथ तलत का भी छूट गया, साथ तलत का भी छूट गया। और एक लिखा था, क्या 16 मुहर्रम है, इमाम हुसैन पर लिखा था। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम पर लिखा था, भीगे जो ना दामन ज़हरा के दुखों से, भीगे जो ना दामन ज़हरा के दुखों से, वास्ता ही उसे क्या है मोहम्मद के सुखों से, वास्ता ही उसे क्या है मोहम्मद के सुखों से। एक ही कुंबा है तारीफ के सफ़ों पे, एक ही कुंबा है तारीफ के सफ़ों पे, जीतता ही जा रहा है ज़मानों की सफ़ों से। लश्कर था बातिल का बड़े बड़ों से, लश्कर था बातिल का बड़े बड़ों से, जीता नहीं पर चंद कटे सरों से। जब से प्यासा रहा ज़ैनब के लबों से, जब से प्यासा रहा ज़ैनब के लबों से, तब से खाली है फुरात, तब से खाली है फुरात लहरों के सुरों से। भीगे जो न दामन ज़हरा के दुखों से, वास्ता ही उसे क्या है मोहम्मद के सुखों से। शाह सिमा फातिमा अपना कलाम पेश कर रही थी। वास्ता क्या है उसी मोहब्बत के दुखों से। मेरे पास अगला नाम है वसीम मलिक का। मैं वसीम मलिक से गुजारिश करूँगा कि वो आए और अपना कलाम यहाँ पेश करें। वसीम मलिक। वसीम भाई मौजूद नहीं है। महफूज हैदरी भाई का अगला नाम है और मुझे पता है कि वो जा रहे हैं, तो उनसे मेरी गुजारिश है कि वो आए अपना कलाम पेश करें। महफूज हैदरी भाई।
मुझे आज ही पता चला आप शायर भी हैं। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो आज की खूबसूरत तकरीर और तकी भाई की खूबसूरत किताब, उनकी काविशों को अहले फिलाडेल्फिया की तरफ से गहवार अदब के इंचार्ज परवेज़ फारूकी भाई और लिटरेरी सोसाइटी के सदर तकी कमाल भाई को दिल की गहराइयों से मुबारकबाद। शायर तो नहीं था, लेकिन खुदा की कसम इस तस्वीर ने शायरों की सफ में ज़रूर खड़ा कर दिया। इनकी मोहब्बतों ने, इनकी चाहतों ने, और बहुत अच्छा किया कि इनकी तस्वीर आज भी आगे है। हम आज भी इनके पीछे हैं और मेरा ख्याल है अपनी ज़िंदगी जब तक है इन्हीं की तकलीफ में इन्हीं की पैरवी करते रहेंगे और इन्हीं के पीछे चलते रहेंगे। अल्लाह ताला इनकी मग़फ़िरत फरमाए। कलाम पहले भी सुन चुके हैं, पुराना है, तलत बाजी के लिए लिखा गया, लेकिन उनकी याद जिस तरीके से दिलों में ताज़ा है तो आप भी उसको उसी तरह सुनिएगा, उसकी ताज़गी को महसूस कीजिएगा। तलत बाजी के लिए लिखा गया है। कोशिश की मैं इजाज़त चाहूँगा सदर मोहतरम से, फकीर साहब से और आपका मोहम्मद आज़। मसनदे इसार पर है जलवा नुमा बाजी तलत, मसनदे इसार पर जलवा नुमा बाजी तलत, अज़मत उल्फत में एक रंगे वफा बाजी तलत, ज़ाहिरी जलवा गरी से पाक थी बाजी तलत, अलगर्ज खिदमत का एक मीनार थी बाजी तलत, लाख ढूंढो मिल नहीं पाएगी उनकी एक मिसाल, लाख ढूंढो मिल नहीं पाएगी उनकी एक मिसाल, खुद ही अपनी ज़ात में थी अंजुमन बाजी तलत, उनके पैकर की महक महसूस करते हैं सभी, उनके पैकर की महक महसूस करते हैं सभी, आज भी महफिल में है खुशबू नुमा बाजी तलत, मानता ही दिल नहीं मरहूम मैं कैसे कहूँ, मानता ही दिल नहीं मरहूम मैं कैसे कहूँ, आज भी नज़रों में है जलवा नुमा बाजी तलत, शायरी में अब नहीं नमक, शायरी में अब नहीं बाकी नमक ए हैदरी, शायरी में अब नहीं नमक बाकी रमक ए हैदरी, दे रही थी हौसला मुझको सदा बाजी तलत, जिसके लिए कहा जा रहा है ज़ाहिर ज़बान की अब पूरी शख्सियत ही नज़र रही हमारी। बहरहाल बहुत शुक्रिया आपका, और मैं चाहूँगा कि जो भी यहाँ आए उसके दिल से जिस तरीके से तलत बाजी की मोहब्बत थी, जैसा कि सभी बाजी ने कहा कि फिलाडेल्फिया यकीनन पहचाना ही उनके नाम से जाता है। अगर फिलाडेल्फिया का नाम है और फिलाडेल्फिया में कौन था क्या था तो सबसे पहले नाम ही उनका आता है तलत बाजी का। तो मैं चाहूँगा कि इसी तरीके से ये चीज़ें होती रहें, उनकी याद इसी तरीके से मनाई जाती रहे, और अल्लाह ताला मोइन भाई को हमेशा सेहतमंद तंदुरुस्त रखे, और हमारी सारी मोहब्बतें, हमारी चाहतें जिस तरीके से उनके अहले खाना के लिए थी, वो सारी मोहब्बतें हम चाहेंगे कि उनको इसी तरीके से देते रहें और बांटते रहें और मिलते रहें, मुस्कुराते रहें, ये प्रोग्राम चलते रहे। बहुत शुक्रिया। तयशुदा है कि वो ना आएंगे, बेसबब ही सवर रही है रात, मैं तो खामोश हूँ मगर तलत शायरी मुझसे कर रही है बात। मेरे पास अगला नाम है एजाज साबिर का। एजाज साबिर भाई से मैं गुजारिश करूँगा कि वहाँ अपना कलाम पेश करें। एजाज साबिर। अनवान है ये इंसान। सोचता हूँ दुनिया में क्या हो रहा है, सोचता हूँ दुनिया में क्या हो रहा है, खुली है आंखें मगर इंसान सो रहा है, खुली है आंखें मगर इंसान सो रहा है। यूं तो ये डाले है कमंदे आसमानों पे, यूं तो ये डाले है कमंदे आसमानों पे, मगर पाँव तले जमी खो रहा है, मगर पाँव तले जमी खो रहा है।
कारिंदा-ए अनील के अमले कामल के बाइस, कारिंदा-ए अनील के अमले कामल के बाइस शैतान खुद लंबी तान के सो रहा है। कारिंदा-ए अनील के अमले कामल के बाइस शैतान खुद लंबी तान के सो रहा है। चीख जाता हूँ ये सोच कर कि काटेगा कौन, चीख जाता हूँ ये सोच कर कि काटेगा कौन, ये जो फसल अब इंसान हो रहा है। शायद ही शैतान ने सोचा होगा कभी, शायद ही शैतान ने सोचा होगा कभी, वही अम्ल अब बनी इंसान से हो रहा है, वही अम्ल अब बनी इंसान से हो रहा है। और उम्मीद है फिर भी इजाज़, और उम्मीद है फिर भी इजाज़, मशीयत इलाही में है जो वो हो रहा है। सोचता हूँ दुनिया में क्या हो रहा है, खुली हैं आंखें मगर इंसान सो रहा है। मेरी रग रग में बहता है लहू के साथ साथ, इसकी चश्मे गौर में रमज़े शनासाई नहीं, बेनियाजी की भी गोया इंतहा कहिए इसे, इसने दिल रखने को भी अपनी कसम खाई नहीं। मैं बुला रहा हूँ टोनी जावेद को कि उनके पास अगर कोई ऐसी कसम है तलतबाजी के लिए तो वो भी यहाँ पे आके जो उनके लिए एक आध कसम खाएं। थोड़ा सा लफ्ज़ों में बहुत सी बातें करूँगा जो हमेशा करता हूँ। पहली बात तो ये है कि हु इज़ नॉट तरतबाजी एडमायर्ड, सीक्रेट एडमायर्ड एवरीवन इज हियर, ये तो हकीकत है। तो दो लफ्ज़ है मेरे पास, थोड़ा सा आप लोग भी सुन लें। हमने नील से ताब आकाश तुझे जाना, हमने नील से ताब आकाश तुझे जाना, सुना हमने दिल की धड़कन ने तुझे जाना, अरमान परेशान के जुल्फ तेरी को घटा जाना, दुज़दीदा ऐन से देखो तो शर्मा जाना, परछाई में अपनी अक्स मेरा देखकर घबरा जाना, हसरत तुझे मिलने की तो तूने शर्मा जाना, मेरे बिखरे हुए ख्वाबों को संभाला देना, दिल के लहू से चिराग को जला जाना। आखिरी शेर है, गौर कीजिएगा। बुदगर कहूँ बुदगर कह लूँ, बुदगर कह लो हमने तुझे खुदा जाना, बुदगर कह लो हमने तुझे खुदा जाना, जावेद ने तुझे कल्ब का मता जाना। बहुत ही मुख्तसर कलाम। अगला नाम है मेरे पास मोहम्मद अयूब जरगर का। मैं उनसे गुजारिश करूँगा कि मोहम्मद अयूब जरगर के मुआयत कलाम पेश करें। महफिल में मकतबे शेर व अदब के बड़े बड़े नाम मौजूद हैं। मैं इस मकतब को मैं एक नर्सरी के तालिब इल्म की हैसियत से यहाँ आया हूँ और तलतबाजी के लिए यहाँ बहुत कुछ कहा जा चुका, उनकी अदबी सलाहियतों पर, उनकी ज़ाती शख्सियत पर। और जैसा कि इसका लबबाब ये है कि जितनी बड़ी वो अदबी शख्सियत थी, उससे बड़ी एक इंसान थी, बड़ी शख्सियत थी। इसलिए मैं एक शेर उनकी नज़र करना चाहूँगा। तलत जैसा लिखूँ अय्यूब ये मुमकिन न सही, तलत जैसा लिखूँ अय्यूब ये मुमकिन न सही, उनके जैसा बनूँ ख्वाहिश मेरे दिल में। अब एक गज़ल के चंद अशआर इजाज़त।
मुक़द्दर आज़माना चाहता हूँ, मुक़द्दर आज़माना चाहता हूँ, उसे अपना बनाना चाहता हूँ। सॉरी गलत पढ़ दिया। मुक़द्दर आज़माना चाहिए था, तो माजी का जिक्र है, मैंने हाल में कर दिया। मुक़द्दर आज़माना चाहिए था, उसे अपना बनाना चाहिए था। मेरे ख्वाबों में है जिसकी हुकूमत, उसे दुल्हन बनाना चाहिए था। मुक़द्दर आज़माना चाहिए था, उसे चाहता हूँ। मुक़द्दर आज़माना चाहिए था, उसे अपना बनाना चाहिए था। मेरे ख्वाबों पे है जिसकी हुकूमत, उसे दुल्हन बनाना चाहिए था। भुलाए एक ज़माना हो गया है, भुलाए एक ज़माना हो गया है, उसे यादों में आना चाहिए था। मोहब्बत का तकाज़ा तो यही था, मोहब्बत का तकाज़ा तो यही था, वो रूठा तो मनाना चाहिए था। बहुत मशहूर थी उसकी जफ़ाएं, बहुत मशहूर थी उसकी जफ़ाएं, हमें भी आज़माना चाहिए था। सहे उसके सितम सहते रहे हम, सहे उसके सितम सहते रहे हम, ज़माने को बताना चाहिए था। और मताए जां थी सो उसके लिए थी, मताए जां थी सो उसके लिए थी, जिसे शाही घराना चाहिए था। किया क्या क्या न हमने उसकी खातिर, किया क्या क्या न हमने उसकी खातिर, उसे लेकिन ज़माना चाहिए था। और आखिर शेर, पहले मैं अय्यूब का नाम तखल्लुस के तौर पर इस्तेमाल करता था, ये पहली दफ़ा ज़रगर इस्तेमाल करता हूँ, क्योंकि सोने का कारोबार है मेरा, इसलिए ज़रगर। वो ज़रगर खुद को कहता है सुखनवर, वो ज़रगर खुद को कहता है सुखनवर, अदब उसको सिखाना चाहिए था। अय्यूब भाई माशाल्लाह से बड़ी जो है बड़े खूबसूरत जो है वो मुख्तसर उन्होंने अपना कलाम पेश किया, और वो इब्तिदा में वो भूल गए। उन्होंने कहा मुक़द्दर आज़माना चाहिए था, उसे अपना बनाना चाहिए था। अय्यूब भाई के ऐसा मसला तो नहीं कि मिलने की तरह मुझसे वो हरगिज़ नहीं मिलता, और दिल उससे मिला जिससे मुक़द्दर नहीं मिलता। अय्यूब भाई कह रहे थे कि मोहब्बत का तकाज़ा तो यही था, वो रूठा तो मनाना चाहिए था। मेरे ख्यालात कुछ मुख्तलिफ से हैं, वो भी मैं आपको बता देता हूँ कि वो जब भी ज़रा रूठा, चुप बैठे रहे हम भी, एक बार मनाते तो हर बार खफा होता। मेरे पास अगला नाम है गाजी सलाउद्दीन भाई का। गाजी सलाउद्दीन के हाथ में मैं पूरी बुक देख रहा हूँ, तो मैंने अपनी बात को मुख्तसर कर दिया है। मेरे पास 5-6 शेर और भी पढ़ रहे कहते हैं अय्यूब भाई की गज़ल पे, लेकिन मैंने कहा कि सलाउद्दीन भाई के हाथ में पूरी किताब है। सलाउद्दीन भाई आज की तकरीब के मैं खुसूसी तौर से आपका हमारे साथ तशरीफ लाए। और मुझे याद है आपकी वो करनुमाई जो आप हमारे पाकिस्तान के प्रोग्राम में किया है, और मैंने आपसे वादा किया था कि आप फिर तशरीफ लाएंगे। उन्होंने कहा कोई अच्छी सी तकरीब मुनक़्क़द कीजिएगा, मैं ज़रूर आऊँ। आज मैंने अपना वादा पूरा किया, बहुत बहुत शुक्रिया। आज की तकरीब क्योंकि गवार अदब के जैसे तमाम मुनक़्क़द की गई है, चंद अशार गवार अदब के लिए। गहवारे अदब ने सरे शाम दोस्तों, गहवारे अदब ने सरे शाम दोस्तों, ऐसी सजाई महफिले दिलशाद हो गए। और शेरो सुखन के आलमी मुशायरे हुए, शेरो सुखन के आलमी मुशायरे हुए, बाज़ो अहले महफिल के दिलशाद हो गए।
गहवारे अदब में परेशान दोस्तों, ऐसी सजाई महफिलें दिलशाद हो गए, शेरो सुखन के आलमी मुशायरे हुए, बाज़ों अहले महफिल के दिलशाद हो गए। और आज की ये तकरीब मेरी बहन बाजी तलत इशारत के लिए और मुकर्रिरीन की इतनी फहरिस्त बड़ी लंबी तवील थी कि बाजी तलत इशारत के बारे में ज़रा कमी थी। मैं सिर्फ यही कह सकता हूँ कि एक ऐसी शख्सियत कभी कभी खुशकिस्मती से जन्म लेती। चंद साल बाजी तलत इशारत के शायद शाम तो नहीं, लेकिन एक भाई की हैसियत से नजराने फिक्र पेश कर रहा हूँ। अजमत का एक मीनार थी बाजी तलत इशारत, अजमत का एक मीनार थी बाजी तलत इशारत, शफ़क़त का एक इजहार थी बाजी तलत इशारत। अशार में गुफ्तार में अपनी मिसाल थी, अशार में गुफ्तार में अपनी मिसाल थी, हम सब का इफ्तिखार थी बाजी तलत इशारत। और जब भी पुकारा उनको लब्बैक ही कहा था, गम में खुशी में साथ थी बाजी तलत इशारत। और भाई मोइन के साथ थी बाजी तलत इशारत, भाई मोइन के साथ थी बाजी तलत इशारत, सरमाए हयात थी बाजी तलत इशारत। महसूस जो किया तो मौजूद हैं यहीं पर, मेरे साथ थी बाजी तलत इशारत। गाजी गरीब की रहमत उनको खुदा करेगा, गाजी गरीब की रहमत उनको खुदा करेगा, सजदों में अश्कबार थी बाजी तलत इशारत। वकील यूसुफ साहब ने मेरे आने से पहले मुलाकात में गाजी साहब के आपने किताब देखी मैंने, तो गाजी उसी को कहते हैं जो मारे नहीं सिर्फ डरा कर कभी किताब सिर्फ डराने की लिखी थी। बहुत उम्दा भाई। बाजी तलत इशारत की ज़िंदगी में एक कभी मुशायरा हुआ था, उसमें हमने तमाम यहाँ के ब्लड डब्बे के लोगों ने अपनी अपनी नज़में पढ़ने की, उसी मौके पर एक ये नज़र थी कि आँखों में अश्क आ गए कुछ याद आ गया, आँखों में अश्क आ गए कुछ याद आ गया, बनके कोई ख्याल गुदाद आ गया। और उम्रे रवां को इश्क बुता में गुजार कर, उम्रे रवां को इश्क बुता में गुजार कर, सहरा में कोई खानमा बर्बाद आ गया। हम पे सितम उठाने की करता था मश्क, अब हम पे सितम जो ढाने की करता था मश्क, अब खुद आप अपने दाम में से याद आ गया। और बरसों ही जिसने तीर चलाए थे हम पे आज, बरसों ही जिसने तीर चलाए थे हम पे आज, गर्दन पे उसकी पंजे औलाद आ गया। और बातें बड़े कमाल की करता था शहर में, इसकी हिकायतों पे मुझे याद आ गया। गाजी को दे रहा था ताने रकीब जहां, गाजी को दे रहा था ताने रकीब जहां, इसके लिए भी लम्हे पर याद आ गया। बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे एक वाक़या याद आ रहा है जो मैंने पढ़ा था कि बर्रे सग़ीर में जिस ज़माने में मुशायरे हुआ करते थे तो बहुत मिसरा दिया जाता था, उस पर जो है मुशायरे हुआ करते थे। तो एक मरतबा दिल्ली में एक तरह मिसरा तरह दिया गया कि वो तो काफिर है जो नहीं मोतक़िद इस्लाम का। मिसरा था वो तो काफिर है जो नहीं मोतक़िद इस्लाम का। तो इस पे वहाँ पर तो जितने भी शोरा हजरात थे मुसलमानों की तो जो है घर की, और हिंदू भी इस मामले में बड़े ताक थे, और जो है वो बड़े बड़े उनके जो है वो मतलब ज़बान और बयान से बड़े ताक थे।
तो इस एक मिसरे पे जो है वो हमारे जो बड़े सगीर में हिंदू भाई थे उन्होंने, या हिंदू शोरा थे, उन्होंने उसका बायकाट कर दिया कि वो तो काफिर है जो नहीं मोतक़िद इस्लाम का। तो ये तो चूँकि मज़हब से कंट्राडिक्ट होता है, मज़हब से कॉन्फ्लिक्ट होता है, लेकिन उस पूरे मुशायरे में एक हमारे हिंदू भाई पहुंच गए और उन्होंने उस पर मिसरा लगाया, और जो मिसरा लगाया तो वो ट्रॉफी और वो इनाम भी उस हिंदू को मिला। और मुझे वो नाम देख के वो मुझे मिसरा याद आया है। तो मिसरा ये था, जो तरह मिसरा दिया गया था, मिसरा था कि वो तो काफिर है जो नहीं मोतक़िद इस्लाम का। उस पर दूसरा मिसरा लगाया गया कि लाम की मानिंद, जो उर्दू का लाम होता है, जो उर्फ़ तहज्जी का लाम होता है, जो यूँ मनाया जाता है कि लाम की मानिंद ज़ुल्फ़े हैं मेरे घनश्याम की। घनश्याम के माने महबूब के होते हैं हिंदी ज़बान में, कि लाम की मानिंद ज़ुल्फ़े हैं मेरे घनश्याम की, वो तो काफिर है जो नहीं मोतक़िद इस लाम। मेरे पास अगला नाम इत्तफाक से घनश्याम गुप्ता का है, तो मैंने इसी लिहाज से मेरे जहन में आया घनश्याम गुप्ता यहाँ पर मौजूद है, तो मैं उनसे गुजारिश करूँगा कि वो आए यहाँ पे अपने कलाम पेश करें। घनश्याम गुप्ता। अस्सलाम वालेकुम। यूसुफ भाई बहुत बहुत शुक्रिया इस तरह से बुलाने का। मेरे भी जहन में गालिब तस्वीर आ रहा था कि यूसुफ उसको कहूँ और कुछ न कहे खैर हुई, जो बिगड़ बैठे भी तो मैं लायक की तहजीब भी था। जो शेर यूसुफ साहब ने पढ़ा वो मैंने दूसरी तरह से सुना है कि लाम की मानिंद हैं कि गेसू मेरे घनश्याम के, लाम की मानिंद हैं गेसू मेरे घनश्याम के, और काफिर हैं वे लोग जो बंदे नहीं इस्लाम के। तो ज़हनी तौर पर देखा जाए तो ये बात तो सच्ची है कि जो इस्लाम के बंदे नहीं हैं वो काफिर हैं, और वो लाम वाला इस्लाम हो चाहे वो मुसलमान वाला इस्लाम हो, बात में कोई फर्क नहीं है। मैं नस्र भी ठीक से नहीं बोल पाता, मैं क्या तकरीर दूंगा, लेकिन एक दो बातें मेरे जहन में ये आ रही हैं कि एक तो गालिब का फारसी का शेर ध्यान आया कि लब एज गुफ्तन चुना बस्तम की गोई, दहन पर चेहरा जख्म बूद बेहिशुद। अब जितना मैं बोलूँगा उसमें गलतियाँ निकलेंगी, इसलिए बहुत मुख्तसर सी बात ये कहना चाहता हूँ कि अगर वक्त को 25 साल पीछे ले जाया जाए और सब कुछ ऐसा ही हो तो शायद आप में से मुझे कोई ना पहचानता और मैं आप में से शायद किसी को ना पहचानता। लेकिन जो महफूज भाई ने बात कही कि जो तस्वीर सामने है उसी की बदौलत आज मैं 4 लोगों को यहाँ नाम से जानता हूँ और 4 लोग मुझे यहाँ माइक के पीछे बुला देते हैं। इसके पीछे बड़ा इशारत ही हैं। सबसे पहले वो मुझे मिली थी और उसके बाद जो सबसे एक एक करके मेरा ताल्लुक़ हुआ है। और मैं ये कहना चाहूँगा कि मोइन भाई से जो मेरी जान पहचान है उसके लिए मैं कोई मेरे पास अल्फाज नहीं है, यानी तलब बाजी के साथ में मोइन भाई का नाम हमेशा मेरे जहन में रहता है। ये कहा सदर साहब के साथ में बैठे हुए जो कौंसल जनरल साहब, उन्होंने ये कहा कि कोई आज चले या कोई कल चले। शेख फरीद का शेर उन्होंने कहा, तो उसी को जरा जहन में रखते हुए एक बहुत ही मुख्तसर बात, ये मुख्तसर जरासी है पर बड़े जतन से तराशी है। बात ये मुख्तसर जरासी है पर बड़े जतन से तराशी है।
कि संग उनका प्रयाग का संगम, संग उनका प्रयाग वो जगह है इलाहाबाद जहाँ पर कितनी नदियाँ आकर के मिलती हैं, गंगा जमुना सरस्वती। तो ये जो सब कल्चर का संगम होता है वो उसी की जानिब से कह रहा हूँ कि संग जैसे प्रयाग का संगम और वैराग्य मुक्त काशी है। काशी में जो मरता है कहते हैं तो स्वर्ग में जाता है। तो एक कोई आज चले आ कोई कल चले आ, तो बड़ी मुख्तसर और छोटी भर की गजल कही है। और परवेज फारूकी साहब कई बार कहा करते हैं कुछ नया कलाम सुनाने में बहुत ताजा है। 15 दिन पहले की है, आनी जानी तन्हा तन्हा